Right. So in case I forget recording, do remind me at the start, students. Okay. So 10 and minus 10. Right. Velocity of A with respect to B. We will just use VA minus VB. And since both their directions are same, so we are talking about velocity again to be remembered. We are not talking about their speeds. So velocity of A क्या हो जाएगा? 20 I cap. B क्या हो जाएगा? 10 I cap. So it will be 10 I cap. That means velocity of A with respect to B is 10 meter per second. Means with respect to B or to B, A will appear to move. A appears to move by 10 meter per second. This is the meaning of velocity of A with respect to B. So here ये सिचुएशन कैसा है कि A भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और B भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. So concept of velocity of A with respect to B, इस केस में what we do, we consider the velocity, we consider velocity of A or we consider movement of A with respect to B. That means by taking B or considering B at rest. देखो B रेस्ट पे नहीं है बट अगर B रेस्ट पे होता तो उसको A किस स्पीड से जा रहा होता, कैसा दिखता. So if B would have been at rest, with what speed A would have appeared to be moving with respect to B. तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो गया, इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे तो ये 10 हो गया. मतलब कि अगर बी रेस्ट पे होता, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर बी रेस्ट पे होता तो ए इसको दिख रहा होता कि इट इज मूविंग एट ओनली 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, लेट्स टेक द अपोजिट केस. जैसे कि ए इज मूविंग टू द राइट बाय 20 and B is moving to the left by 10. Some of you were having doubt in this, so quickly let's do this one. And yes, the relationship between VAB and VBA is VAB is equal to negative of VB1. Just you can put the formula, you can get this relationship. So here in this case, you have to find velocity of A with respect to B. 30 I cap. That's right. 30 I cap. Why this will be 30 I cap? Let's not see in terms of formula. Let's see in terms of logic. We have to find velocity of A with respect to B. राइट, वेलोसिटी नॉट द स्पीड. तो पहले ए का वेलोसिटी हम यहाँ लिख लेंगे. क्या है ए का वेलोसिटी? 20 आई कैप. बी का क्या है वेलोसिटी? माइनस 10 आई कैप. राइट. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. मीन्स आई हैव टू मेक बी एट रेस्ट एंड देन ऑब्जर्व ए दैट विथ व्हाट स्पीड इट इज मूविंग. है ना. तो बी को रेस्ट पे कैसे लाएंगे? माइनस 10 आई कैप है, इसको जीरो पे कैसे लाएंगे? व्हेन आई ऐड हियर प्लस 10 आई कैप. राइट. तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए 0 आई कैप. तो इसमें 10 ऐड किया तो इधर भी सेम अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 20 प्लस 10 क्या हो गया हमारा? 30 आई कैप. मतलब अगर बी रेस्ट पे होता तो इसको दिख रहा होता कि अगर बी रेस्ट पे हो जाए तो ए विल अपीयर टू मूव बाय 30 मीटर पर सेकेंड टू द राइट. Here direction is also important. To the right. मतलब B अगर रेस्ट पे होता तो इसको दिखता कि A 30 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से पास आ रहा है. इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स B. राइट. ओके. Let us take one more situation. Let's just try to analyze. जैसे कि A is moving along
positive x direction with 10 meter per second, or B is moving along positive y axis at 10 meter per second. In this case, you have to find velocity of A with respect to B quickly. So first find velocity of A with respect to B, and then you have to find the speed of A with respect to B. चलो एक आंसर मुझे मिला 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और स्पीड मिला 10√2. Just check everyone. Do you all agree with this? Final speed of A with respect to B. सभी का हो गया होगा प्रोबेबली. दिस इज वेरी सिंपल. बस यहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ velocities, not the speed. So we will just write the velocity in terms of I cap and J cap, and we will get the results. Okay, so speed of A with respect to B, just take velocity of A, that is 10 I cap. B का क्या है 10 J cap. So A with respect to B, just do 10 I minus 10 J. That's right. And speed will be just the magnitude of this one. Okay, so we will do now some questions based on relative velocity. So you would have analyzed that everything around us that we consider moving, that is relative to us, because we are talking about around us. Okay, let's do this one. सभी कोई करेंगे. जल्दी जल्दी करेंगे इसका. जस्ट लेट मी नो द आंसर. Okay, I've got one 650.
वन मोर आई हैव गॉट, दैट इज 350. एक 650 मिला मुझे, एक 350 मिला. क्विकली, जस्ट वन मोर मिनट. सभी कोई इसको अटेम्प्ट करेंगे. Let us see here what we require. It says a jet aeroplane. ये रहा चलो jet aeroplane. It always moves initially perpendicular to the surface. Is traveling at the speed of 500. Let us say ये इधर ट्रैवल कर रहा है 500 किलोमीटर्स पर आवर. चलो मान लिया ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल में है. इट इजेक्ट्स इट्स एग्जॉस्ट. तो एग्जॉस्ट गैसेस जो होंगे वो पीछे के डायरेक्शन में ये इजेक्ट करेगा. कितने स्पीड से इजेक्ट कर रहा है? 150 किलोमीटर्स पर आवर, राइट. एंड दिस इज रिलेटिव टू द प्लेन, है ना. दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, ये दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गैस क्या है. तो ये देखो ये क्या दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ गैस नहीं दिया है. सिर्फ इट्स नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ गैस, इट्स रिटन it ejects the exhaust at the speed of 150 relative to the plane. मतलब ये जो 150 है ये relative velocity दिया हुआ है. So this is velocity of gas relative to plane means with respect to plane. Okay. So here we have to find the speed of the gas with respect to observer on the ground. Observer कैसे रहता है? Stop रहता है हमेशा. It is at rest. So what will be the answer? We know velocity of gas with respect to plane is velocity of gas minus velocity of plane. Velocity of gas with respect to plane, let's put the values. क्या है यहाँ पर? 150 is equal to velocity of gas minus 500, right? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? Can I write like this, or should I make the change? Minus 150 is equal to Vg minus 50. You all should tell me what should I take. 150 is equal to this or minus 150 is equal to this. क्या लेना होगा? minus 150 या plus 150 on the left hand side.
वी हैव टू टेक हियर, अच्छा माइनस क्यों लेंगे, why we will take minus, see we already know that it is in the opposite direction, right? और अगर ये opposite direction में नहीं होता, if it would have been just about any two random objects, object A and object B, and अगर वहां पे दिया होता velocity of B with respect to A is 10, तो हम प्लस 10 लेते, velocity of B with respect to A अगर वो माइनस 10 होता तो हम माइनस 10 लेते, but here we are sure about the direction. So when we are sure about the direction, so what should be good thing to take, plus, right? तो यहाँ से velocity, फिर तो velocity of gas भी फिर माइनस ले ली, right? Here we are sure about the direction, that's why we are just implementing the values. तो Vg क्या हो जाएगा, 150 plus 500, that is 650, that is velocity of gas, right? ये देखो ये नेगेटिव आएगा तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस 650, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या वैल्यू है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें इंडिविजुअल मूवमेंट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को, उनके वेलोसिटीज के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है. सो इफ यू गेट Vg as 650, दैट मीन्स यू कैन इजीली से, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये माइनस 650 होगा, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं है, if I write minus 650, it doesn't mean that gas is moving at a speed of minus 650 in this direction. अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करें डायरेक्ट डायग्राम में, then we do not need to include plus or minus. प्लस माइनस तब है जब हम सिर्फ वैल्यूज में बात कर रहे हैं. तो क्या ये 650 करेक्ट है? अगर यहाँ पे देखो माइनस 150 लेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 150, तो ये 350 हो जाएगा. बहुत का आंसर मैं ये भी देख रहा हूँ 350. हमें ये याद रखना है कि ऑलवेज whenever we are going to talk, we are going to not use the diagram specifically, क्योंकि हम डायग्राम यूज करके, see this is as this diagram, अगर मैं ऐसे कह दूं an object is moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर यहाँ कह दूं an object is moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी क्लियर है क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर दिए हैं, वी हैव शोन द वेक्टर्स हियर. बट अगर हम वहां पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक्सप्रेशन यूज करना होगा, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10i एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी माइनस 10i, राइट? तो इन्हीं चीज को हम, हियर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मूला, राइट? वी आर इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मूला. एक अगर नॉर्मल हम ऑब्जर्वेशन देखें तो जेट अगर 500 से ऊपर जा रहा है और गैस अगर नीचे कुछ लेट अस से x स्पीड से, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड, अगर x स्पीड है तो वेलोसिटी ऑफ गैस क्या होगा, माइनस एक्स, राइट? वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होगा, 500 आई कैप मान, जे कैप मान लेते हैं, और ये माइनस एक्स जे कैप. अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट की बात करें तो वो होगा velocity of gas, that is minus x j cap minus 500 j cap, राइट? तो क्योंकि ये j cap के अलॉन्ग है तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 500 j cap. तो x तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमें, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है. दैट मीन्स whenever we talk about velocities, it's always good to decide the direction and then put the symbols accordingly, right? So let us
decide. Let me just see how many of you have given 350 or 650. Let us see which one is correct. I can see 150. बहुत जगह 150 भी दिख रहा है मुझे. 350 I can see, minus 350, 350, minus 350, 650 I can see, and then minus 150 I can see. Okay, let me see. See, this is, you all have to decide क्या ये correct है, क्योंकि मैंने इसमें लॉजिक तो वही यूज किया, देखो डायग्राम से यूज किया, बट हमें क्या करना है, फॉर्मूला से यूज करना है. सो नाउ दिस इज अपॉन यू कि कितने लोग ये डिसाइड करते हैं. So I'll just share the poll. You have to just give me the options. Not now. Sure. Everyone will give me the answer. This will let me know the complete idea that you all have got related to relative velocity. I have got only 39% answers, और उसमें भी मुझे इक्वल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ए और सी. At least 60% I need. ये सभी को समझ में आना चाहिए. दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. मैं बार बार कह रहा हूं, वी हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली. तो अगर मैं डायग्राम यूज कर रहा हूं, सो यू ऑल शुड रेज द क्वेश्चन, आई शुड नॉट यूज द डायग्राम. एक तो लॉजिक भी इसमें सिंपल सा लगा सकते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटीज ऐड होंगे, राइट. टुवर्ड्स ईच अदर अगर आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऐड होंगे. अवे जा रहे हैं तो वो वेलोसिटीज ऐड होंगे. आई हैव एग्जैक्टली गॉट 60%. सबको ही ट्राई करते जाओ एंड गेट द रिजल्ट. ये समझ में आ गया, मतलब सारा क्वेश्चन इसका बन गया. वेरी सिंपल. दिस इज जेट का स्पीड दिया है, उसे हमें वेलोसिटी में लेना है. ठीक है, उसे हमने ले लिया प्लस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. इट इज इजेक्टिंग द गैस, तो पहले गैस का स्पीड कंसीडर करेंगे, लेट अस से x, और फिर उसको हम वेलोसिटी में चेंज करना ही होगा विदाउट बिफोर पुटिंग इन द फॉर्मूला. तो वो माइनस एक्स.
की वेलोसिटी हो जाएगी। या ऐसे भी समझ सकते हो, अगर प्लेन लेट अस से ऊपर जा रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज कि अगर जेट जीरो पे होता, यही मतलब है ना कि अगर प्लेन जीरो पे होता तो इसको गैस कितने स्पीड से जा रहा होता, फिर भी हम उसमें नेगेटिव लेंगे, राइट। तो ये जो हमारा सबसे पहले कंसिडरेशन है, वेर यू ऑल शुड हैव ऑब्स्ट्रक्टेड विच आई वांटेड, कि यहाँ पे मैं प्लस नहीं ले सकता, राइट। यहाँ पे आई हैव टू टेक -150 बिकॉज इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। ये जो है -150, इट सेज इट इज इजेक्टिंग द गैस एट द स्पीड ऑफ 150 रिलेटिव टू द प्लेन। प्लेन के रेस्पेक्ट में फिर भी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा, राइट। और नीचे का डायरेक्शन हमने लिया है नेगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव। So we should modify this one. Let us modify. Let's see. All are correct. -150 कर दिया. Velocity of gas. Let us say -x कर दिया and -500 कर दिया. तो यहाँ से -x का वैल्यू मिला हमें 500 -150. तो यहाँ से हमें मिला 350, राइट। 350 अभी भी बचे हैं 70%, 30% आर रिमेनिंग। सभी कोई आंसर करेंगे इसको? Let us see what all final answers you all get. Very simple idea, हम फॉर्मूले में with signs we will put them. So here the answer will be 500, इधर लाया -150, तो -x हमें मिला 350, तो x हमें मिला -350। तो इसमें से हमें B मिल रहा है ऑप्शन, बट वी हैव 24 मोर परसेंट। एज आई सेड, अगर 100% होता है देन वी विल सी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। दिस इज राइट with respect to this description. A lot of confusion here. Everyone has to decide कि हमें फॉर्मूला में पुट करना है तो कैसे करना है। क्या मिल रहा है फिर हमें आंसर, पुटिंग इट इन द फॉर्मूला? -350, राइट। B is coming to be the right one. देखो, जब एक और केस लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये चलो दो ऑब्जेक्ट है, एक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, या इसको मान लिया 20, इसको मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हम ऐड करेंगे, राइट। वी विल ऐड इट 20 plus 10 because the separation will be appearing to be increasing with respect to time, right। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक तरफ आ रहा है तो भी हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज सेपरेशन विल बी अपियरिंग टू डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
तो जो प्लेन और गैसेस के सिनेरियो हैं, तो लेट अस से ये प्लेन है, ये गैस है, प्लेन की स्पीड से मूव कर रहा था 500, राइट। इसकी स्पीड अगर x है एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन टू अस, दैट इज 150, 150 है रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ डेफिनेटली दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम देखें, देखो यहां पर सबसे पहले तो ये माइनस में होना चाहिए, राइट, और ये कितना होना चाहिए, क्या ये -650 मैं कह दूं इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, तो -650, और अगर इसको मैं ऐड करूं तो हमें क्या मिल रहा है, -150, राइट। So here option B will be the right one. Simply we will do 500 minus, not B, not B. We will do just 500 minus 150, जो कि मिला 350। अच्छा, ये 350 क्या मिला, दिस इज द स्पीड, राइट, स्पीड, बट मैंने ये ऑप्शन दिया था वेलोसिटी के, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। बट आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू पुटिंग 650। यू ऑल अंडरस्टूड 650 क्यों हमारा इस सिनेरियो में सही नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, इसका डायरेक्शन पता है हमें, इसका डायरेक्शन अपोजिट है हमेशा, गैसेस आर ऑलवेज इजेक्टेड अपोजिट, राइट। प्लेन अगर ऊपर की तरफ, प्लेन तो ऊपर ही तरफ जाएगा ही ना, अगर प्लेन ऊपर जा रहा है तो गैस तो इधर जा रहा है, गैस की डायरेक्शन हमें ऑलवेज, वी आर कंफर्म्ड अबाउट द डायरेक्शन, क्यों नेगेटिव होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर टू दिस। एंड इसमें भी हम ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। So this will be the one which all will do. Similar questions I have got, we will do them. Everyone try getting the answer. I just put the options. So everyone will answer. I just shared the poll here. Okay. So everyone will select क्या क्या होंगे, 1000 km/h -1000, इन्हीं के डिफरेंस में मुझे रिजल्ट्स चाहिए।
देखना है कि हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड या वेलोसिटी. You all can clearly get the answer. तो आंसर 1000 होगा या -1000 होगा. So at least 50% should attempt. जल्दी जल्दी करेंगे. We have to do a lot of questions. A jet airplane traveling at the speed of, फिर से यहाँ पे बात हुई प्लेन की, and plane is moving at the speed of 500 kilometers per hour. It is ejecting its products of combustion, means the gases, at the speed of, ये देखो ये speed mentioned है, and of course it will be ejected in the opposite direction. So 1500 kilometers per hour relative to the jet plane. This is with respect to jet plane. You have to find the speed of the latter with respect to an observer on the ground. You have to find the speed of gases. Latter means बाद में gases की बात हुई. So we will apply velocity of gas with respect to plane as velocity of gas minus velocity of plane. Velocity of gas कितना है? -1500. Velocity of gas निकालना है. Velocity of plane क्या है? Just 500. So we will put here. So velocity of gas क्या मिला यहाँ से? -1500 plus 500. 1000 minus 1500 और 2000 सारे ऑप्शंस मिले हैं. बट ये देखो हमने फॉर्मूला यूज किया तो -1000 मिला वेलोसिटी ऑफ गैस. बट क्या हम आंसर -1000 सेलेक्ट करेंगे? आंसर इज नो, बिकॉज माइनस तो हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट. क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्पीड. So answer is 1000. So here correct option will be A. So yes, that's right. Most of you has given this A as the answer. That's okay. That's great. So okay, we will move with the questions from the modules now. Yes, Zain, Rihan, what is your doubt? कोई डाउट है? Okay. So we will, at the end, we have to also talk about the minimum distance. This is quite difficult topic, but this is a part of relative velocity only. We will use all the concepts of relative velocities. Okay, so first we will just progress ahead with simple questions here, where we can use the concept of relative velocity. Okay, yes, everyone will do this. Relative velocity use करना है तो use करो. अगर उससे better कोई method लग रहा है तो definitely you can also do this without using relative velocity. So you have to give me the answer of this in terms of just the speed that they have asked here. और जल्दी करेंगे इसको.
10 meters, एक आंसर मिला. ओके. ओके, एक 1000 मीटर मुझे दिखा, 3 किलोमीटर भी दिखा. सो हियर लेट अस फिगर आउट 1000 मीटर. आई विल से दिस इज करेक्ट. जिनको जिनको 1000 मीटर मिला, दिस इज करेक्ट. लेट अस सी. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. ये रहा पुलिस का जीप और ये रहा let us say culprit. Motorbike crosses a turning at a speed of 72. The jeep follows it at a speed of 90. जीप का स्पीड क्या है 90. Let us take in terms of मीटर पर सेकेंड. तो इसका हो जाएगा 90 इंटू 5/18. तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. इसका हो जाएगा 72 इंटू 5/18. तो इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. Assuming that they travel at constant speeds. Okay, what's also written? Crossing the turning 10 seconds later than the bike. तो पुलिस के पास जीप है and culprit is going on a bike. It says the jeep follows it at a constant rate 25, crossing the turning 10 seconds later than the bike. चलो, ये बाइक क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग टर्न किया. तो टर्न करने के बाद ये किसी इस पॉइंट पे आ जाएगा और इसको कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने में. इट्स रिटन क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक. मतलब ये 10 सेकेंड्स लगा. यू हैव टू फाइंड, assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up the bike. इससे कितना फार ऑफ रहेगा ताकि ये जीप will be able to catch the thief. थाउजेंड या 3000, जिनको आंसर मिला दैट्स राइट. ठीक है. तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स और वी आर ऑल्सो गिवन द स्पीड विथ विच द पुलिस इज मूविंग. अच्छा, 10 सेकेंड्स में कल्प्रिट कितना दूर चला जाएगा, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना सबकी. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कल्प्रिट अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस से 10 सेकेंड्स में देखा तो ये कल्प्रिट 200 मीटर इधर आ जाएगा. एंड it's also given that police jeep is moving with certain speed and it takes 10 seconds here. तो पुलिस जीप कितना पीछे रहेगा इन 10 seconds if we see. ये यहाँ पे दिया हुआ है, पुलिस जीप is chasing here. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up the bike. इससे कितना फार रहेगा तो ये कैच कर लेगा. दिस वी हैव टू फाइंड. लेट अस से ये हमारा आंसर x है, राइट. अच्छा, ये दिखा हमें. लेट अस कंसिडर द सिनेरियो हियर. ये तो बाद का सिनेरियो देख लिया कि अगर 10 सेकेंड्स में क्रॉसिंग के बाद, क्रॉसिंग के 10 सेकेंड्स के बाद वो जीप या फिर इसके बाइक के पोजीशंस क्या होंगे. बट हियर वी हैव टू फिगर आउट
that what will be the minimum distance, right? Minimum distance, so that police will be able to catch the culprit. Okay, so here we will just use the simple things. तो पुलिस की अगर हम देखें पोजीशन, here it will be better to consider relative velocity, but without relative velocity, let us see. ये अच्छा पहले रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। ये 200 मीटर्स आया, राइट, आफ्टर द सिचुएशन और आफ्टर द टर्निंग। तो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव टाइम। तो रिलेटिव टाइम देयर इज नो सच थिंग, if time will be constant with respect to each other, the way it appears to move, the way it appears to flow with respect to an object, that will be same for the other object. Distance relative का मतलब है the distance joining these two objects, right? So we have to find out this distance joining these two objects. इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये कल्प्रिट अगर यहां पर आ गया तो पुलिस जीप यहां पर आ जाएगा, राइट? तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होंगे, 200। और अच्छा टाइम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव। तो डिस्टेंस रिलेटिव हमारा हो गया 200, वेलोसिटी रिलेटिव कितना होगा हमारा, एक का है 25 और दूसरा का है 20, राइट? तो ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं ना, तो पुलिस का भी इस पॉइंट पे क्या होगा 25, इधर यहाँ पर कल्प्रिट का क्या होगा 20। सो रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो वो हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें टाइम कितना मिला, टाइम मिला 40 seconds. So what is this 40 seconds giving us idea about? ये जो 40 seconds है, this is giving us idea कि अगर पुलिस वैन यहाँ पर है, पुलिस का जीप अगर यहाँ पर है और ठीक ये कल्प्रिट का बाइक यहाँ पर है, इट विल बी एबल टू कैच अप। एंड दिस मतलब कि मिनिमम सेपरेशन क्या है, 200 मीटर्स इन टर्म्स में समझते हैं। 200 मीटर्स ये जो डिस्टेंस है, दैट विल बी बिटवीन जीप एंड दिस बाइक, and the time taken for this police to come here is 40 seconds. तो ये रहा स्पीड पुलिस का, टाइम क्या हो गया 40 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम 1000 सेकेंड्स, राइट? ये क्लियर है सभी को? यस, एवरीवन हैव गॉट ऑलमोस्ट। सी पुलिस इज हियर, इट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25। हर पॉइंट पे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इनका स्पीड कांस्टेंट है। ये रहा जीप, बाइक, राइट, पुलिस इज मूविंग ऑन जीप। तो ये जो कल्प्रिट है विच मूविंग ऑन द बाइक, इसका है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस टर्निंग पे बाइक किधर आएगा, इधर आएगा। सो लेट अस सपोज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन 10 सेकेंड्स पुलिस विल कम टू द, नहीं 10 सेकेंड्स नहीं, इट सेज क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। मतलब बाइक अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उनको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड्स, राइट? बिकॉज पुलिस इज क्रॉसिंग दिस टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर। तो अगर 10 सेकेंड्स लेटर ये मूव कर रहा है तो बाइक अगर यहाँ आ रहा है तो पुलिस यहाँ रहेगा, राइट? तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस देखें तो क्या है, 200 मीटर्स, राइट? दैट्स गिवन टू अस। ये देखो, वी हैव बीन गिवन देयर रिलेटिव स्पीड्स, टाइम दिया हुआ है, तो हम वी कैन फिगर आउट द डिस्टेंस, राइट? It says the jeep follows it at constant speed, crossing the turning 10 seconds later than the bike. तो 10 seconds later than the bike, तो बाइक 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 200 मीटर, राइट? क्योंकि इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब सेपरेशन 200 मीटर है तो टाइम कितना
वहां तक वो सेपरेशन होने में कितना टाइम लगा, सो दैट टाइम विल बी डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव। 25 माइनस 20, तो ये हो गया 200/5, दैट इज 40 सेकेंड्स लगा ये सेपरेशन होने में फ्रॉम द स्टार्ट। तो फ्रॉम द स्टार्ट में पुलिस कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 1000 meters। नाउ इट्स क्लियर। So we will do one more question. Explicitly you have to do this problem using the concept of relative motion। बिना इसके हम कर ही सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि relative motion हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। Do this one. A ball is dropped from a balloon going up। ये रहा balloon, it's going up at 7 मीटर पर सेकेंड। बॉल को हमने ड्रॉप किया है। Balloon was at a height of 60 at the time of dropping the ball। How long will the ball take to reach the ground? जिस टाइम पे बॉल को हमने रिलीज किया वो कितने हाइट पे है, 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। This you all should do fastly, so I am going on giving more and more time because this is quite confusing। ये जो relative motion है, at the same time it's very easy if you understand to make the situation simple। this is very easy। चलो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स करेंगे, राइट। हमें पता है ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, नीचे का नेगेटिव है। चलो आंसर देख लेते हैं। सम ऑफ यू हैव गिवन मी अप्रॉक्स 4.2 सेकेंड्स मिला। ओके, एक आंसर मुझे मिला। यू ऑल कैन कीप फाइंडिंग इट आउट। चलो हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया यहाँ पर, राइट। अब जो बलून है दैट इज मूविंग एट 7 मीटर पर सेकेंड। इट इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, और वहां से हमने स्टोन को रिलीज किया। सो दिस इज फॉर श्योर कि यहाँ जो हमें मोशन होगा दैट विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी। जो बैलून गिरेगा दैट विल बी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उस पर डेफिनेटली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन। देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो सिचुएशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू निकालना है या फिर कुछ करना है, इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करना है, राइट, एज पर द क्वेश्चन। व्हाई आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन इन बिटवीन, ताकि हम हर प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन के नजर में देखना ना शुरू कर दें, राइट। वी इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्रॉब्लम विल अपीयर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज अ सेपरेट एंड एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। तो जो स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। इनिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट एट द पॉइंट इट इज थ्रोन।
ये बात अलग है कि एक बार जब हमने थ्रो कर दिया तो वो नीचे आएगा, राइट, बट वो थ्रो करने का बाद, बट when we are talking about initial, that means it is the velocity at the point, उस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड प्लस, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? -60, right? We talked about that point of projection we'll be taking as origin. So -60 मीटर. We have to figure out time. अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है? वो तो हमेशा -10. So put in the equation s equals to ut plus half at square and just solve for t. So let us see what we are getting. -60 equals to 70 minus 5t square. So let us solve this quadratic. हमें क्या मिलेगा यहाँ से? t is equal to, पहले इसको अरेंज कर देते हैं, 5t स्क्वायर -70 -60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये देखेंगे तो ये आएगा 1249 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। सो अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 35 आएगा। तो एक अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं, क्या वो 4.2, समवन हैज टोल्ड मी द आंसर, क्या वो करेक्ट है? अप्रोक्सीमेटली 4.2, दैट इज एग्जैक्टली राइट व्हाट वी गेट, राइट। 4.23 ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो 4.2 दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई सिंपल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें वी हैव टू आल्सो टेक हियर अ पॉइंट दैट द इनिशियल वेलोसिटी, एक पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is determined by the history of motion। तो जब भी कंफ्यूजन आए ये लाइन याद करो। ये स्टोन को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय द हिस्ट्री, और हिस्ट्री क्या है कि ये स्टोन जो बैलून में था ये ऊपर जा रहा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्लियर ही होगा सभी को। Okay, so finally, let us see the concept of shortest distance. So you all have gone through vectors, and we will be implementing the concept of vectors here while determining the shortest distance. So let us take this into consideration, a situation when we have two objects. Let us say that one object is at this point, let us say P1, ये move कर रहा है to the right with velocity V1। वहीं पर यहाँ है P2 that is moving up at a velocity of speed मान लो V2, राइट। क्योंकि अब देखें तो दोनों का वेलोसिटी इज अलोंग, इसका देखो तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, इसका देखो तो पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में, मतलब दोनों का वेलोसिटी पॉजिटिव है इनिशियली। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देखने को मिलेगा? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कुछ समय के बाद देखते हैं, तो V1 जो होगा, चलो यहाँ आ जाएगा, V2 यहाँ पर आ जाएगा, V1 फिर यहाँ आ जाएगा, V2 फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। इनिशियली जो है, इनिशियली उसका सेपरेशन ये है, फिर क्या हुआ? सेपरेशन ये हो गया, फिर क्या हुआ? देखो सेपरेशन, अच्छा ये हुआ, फिर सेपरेशन ये हो गया, और फिर सेपरेशन ये हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अनलेस एंड अनटिल देयर स्पीड्स आर नॉट कांस्टेंट, दोनों के में सेपरेशन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ओके,
अब एक बार जब ये v2 यहाँ आ जाता है, राइट, v2 यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ जाता है इस पॉइंट पे, और v1 कहीं यहाँ आ जाता है, तो अब v1 का डायरेक्शन ये है, v2 का डायरेक्शन ये है, मतलब बोथ द डायरेक्शंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो कुछ टाइम के बाद देखो v2 यहाँ आ जाएगा, v1 देखो यहाँ आ जाएगा, फिर v2 यहाँ आ जाएगा, v1 यहाँ आ जाएगा, मतलब उनके सेपरेशन जो है अब इंक्रीज हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑब्जर्व, if the directions if the direction of either of the particle is towards another particle या towards the tending direction, तो separation decrease होंगे। अदर केस में क्या होगा, after some time the separation will increase। okay, so our motto is to find minimum distance, minimum distance we have to find। तो मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट पे होंगे, वी डू नॉट नो दैट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग दैट, बिकॉज वी नो कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो हम सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस एट रेस्ट। ठीक है, तो चलो हम इसको रेस्ट पे बना देते हैं। किसको बना देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, लेट अस से मैं P1 को ले लिया और इसको मैं रेस्ट पे लाऊंगा, राइट। तो अगर P1 V1 स्पीड से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको दूसरा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जाते दिखेगा। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर एक आदमी है और ये एक आदमी है, लेट अस से दिस इज बी, दिस इज ए। बी अगर ए के रेस्पेक्ट में राइट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ए को क्या दिख रहा है कि बी राइट मूव कर रहा है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वैसे ही बी को क्या दिखेगा कि ए उससे पीछे छूटता जा रहा है। तो मतलब अगर बी को देखना है, बी को रेस्ट पे रखना है, तो इससे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, राइट। बी को रेस्ट पे लाने के लिए माइनस करेंगे, तो ये जीरो ही है, तो इसको इसको क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे, इक्वल अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा -10। तो ध्यान से देखो, अगर बी राइट की तरफ मूव कर रहा था और ए रेस्ट पे था, इसी सिचुएशन को हमने चेंज किया, बी को रेस्ट पे बनाया, तो ए किधर मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, टू द लेफ्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये ठीक है, P2 का वेलोसिटी V2 है, दिस इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स डायरेक्शन मोशन। हमें P1 के वेलोसिटी को जीरो करने के लिए एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है उसको मॉडिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पर -V1 करेंगे, मतलब P2 इस डायरेक्शन में V1 स्पीड से जा रहा है, कब, जब P1 रेस्ट पे अज्यूम किया गया है। तो अब देखें तो P2 के दो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं, V1 और V2। तो P1 को किधर दिखेगा, P2 मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, यस करेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ V1 एंड V2, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट वी कैन नॉट सी, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ और वेस्ट। हियर वी हैव टू फिगर आउट द एंगल। क्या है एंगल, देखो, tan theta is equal to perpendicular component of velocity, that is v1 divided by this v2। तो ये देखो 45 कब होगा, जबकि v1 is equal to v2 होगा, राइट। तो उस केस में नॉर्थ वेस्ट हम कह सकते हैं, बट इन ऑल अदर केस वी कैन नॉट से दैट दे आर मूविंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वंस वी गेट दिस आइडिया, अब लेट अस से एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुआ है कि P1 is moving to the right at V1 speed, P2 is moving to the north with V2 speed, and initially let us say L was the separation, मतलब इतने दूर पे थे वो। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो P1 को तो रेस्ट पे हमने एनालाइज किया और P2 इधर मूव कर रहा है, राइट। तो P1 के रेस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, द परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम P1 to any point on the direction of movement of P2। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट पे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, या फिर डी मिनिमम लेट अस सपोज। सो कैन वी फाइंड दिस डी मिनिमम, यस।
लेट अस कंसिडर दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में वी हैव दिस हैज 90 डिग्री, ये एल दिया हुआ है, ये एंगल अभी हमने निकाला. तो क्या डी मिनिमम वी कैन से दिस एज L sin theta, right? We'll just use the ratio sin theta. अब sin tan theta तो पता है, तो sin theta हम वहां लगा के कैलकुलेट करके पुट कर देंगे. लेट अस कैलकुलेट sin theta फ्रॉम हियर. थीटा tan theta क्या होगा, v1 by v2. तो sin theta के लिए हमें ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. तो अब यहाँ से sin theta क्या कह सकते हैं हम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. So let us put this value of sin theta here. So L v1 by root of v1 square plus v2 square. So everyone note this down. You may get questions based on this calculation of shortest distance. तो हमारा अप्रोच क्या रहा, गोइंग थ्रू इट वंस अगेन. अप्रोच क्या रहा हमारा कि हमने इस पूरे सिस्टम को एनालाइज किया विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है v1 को रेस्ट पे लाएं, हम v2 को भी रेस्ट पे ला सकते हैं. तो जब रेस्ट वी कंसिडर्ड दिस कंप्लीट सिनेरियो विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो हमें क्या दिखा, अदर ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन अ डायगोनल डायरेक्शन. तो वहां पे हमने easily we calculated the minimum distance because it was a perpendicular line joining other particle and the line along which the particle was moving. क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग एक्सप्रेशंस निकलेंगे. जब टू डायमेंशनल मोशन हम एनालाइज करेंगे, at that point of time we will explore this minimum concept quite more. Because whenever we talk about motion in a plane, it's all about using vectors. तो मैंने बस एक छोटा सा आइडिया दिया है. अब अगर if you all are finding this quite complex, so after going through motion in a plane, specifically through projectile motions and all other stuff, this will become more clear. We are again going to take relative velocity into exploration. वहां भी हम टू डायमेंशनल मोशन में देखेंगे some problems related to relative velocity. Okay, this is clear to all. अच्छा, so let us just randomly do this question at last. So we have completed, guys, motion in a straight line. You have to do all the homework. Two point four. In the last classes, we did 2.1 and 2.2. I gave you as homework. Now you have to finish up till 2.3 and 2.4. So complete module you have to finish them. So next class we will see the doubts, and then we will start with motion in a plane. Okay, so on a final note, let us quickly finish this question. This we will do quite quickly.
So first just consider each of the car speed in terms of meter per second. तो कार ए का अगर हम स्पीड देखें तो 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। बी का क्या है? बी एंड सी इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 54 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। At a certain instant when the distance AB and AC, so on a two-lane road, car A, ये रहा two-lane road, car A is traveling with the speed. Let us suppose car A इधर travel कर रहा है. B and C approach car A in opposite direction with the speeds B and C, right? Because it's given AB is equal to AC. कुछ ऐसे सिनेरियो रख लेते हैं, आसपास से गुजरेंगे तो A. Okay, this is the scenario. And what is given? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अच्छा अपोजिट, नॉट ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट सेज टू कार्स अप्रोच ए इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये सिनेरियो कुछ ऐसा है। ये रहा ए, लेट अस से ए वाज मूविंग टू द राइट, नाउ दिस इज करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। क्या क्या डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर, मीटर्स में लेते हैं 1000 meters और ये भी 1000 meters, right? This is the situation. It says B decides to overtake A before C crosses it. B decide to overtake A before C approaches A, right? What is the minimum acceleration of car B? देखो, acceleration तो definitely होगा, because अगर acceleration नहीं होगा, it's stated कि ये constant speed से move कर रहे हैं। तो अगर constant speed से move कर रहा है, तो it is very much clear कि C will be able to cross A first, right? क्योंकि ये दोनों आपको एक डायरेक्शन towards each other they are moving, so C will be able to cross it first. तो एक ये B का there should be some acceleration and we have to figure out that acceleration. So for this purpose we will find out the time that will be taken to overcome or to cross C. We will talk about the minimum time कि C को कितना टाइम लग सकता है क्रॉस करने में, हम उससे कम टाइम में क्रॉस करेंगे। तो चलो C को टाइम लग सकता है relative distance 100 1000 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी? देखो दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये स्पीड्स मैंने लिखा है तो 25, राइट? एक डायरेक्शन में ऐड होता है, सो टाइम विल बी 40 सेकेंड्स, मतलब मिनिमम 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में सी इज एबल टू क्रॉस इट, तो इस 40 सेकेंड्स में बी के इंफॉर्मेशन देखते हैं। 40 सेकेंड में बी को कितना एक्सीलरेट करना है, अच्छा बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है इस 40 सेकेंड्स में। 1000 तो पहले ही था, 40 सेकेंड में ए कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 10 इंटू 40 400 मीटर्स, तो बी को डिस्टेंस कवर करना है 1400 मीटर्स। स्पीड इसकी कितनी है बी की? दैट इज इनिशियली इट्स स्पीड इज 50। Here why I am talking about initial, because there should be some acceleration of b, which is the question asked, and for what time we are finding? Minimum 40 seconds, right? ये हमारा टाइम फ्रेम है 40 seconds, so we'll just relate them. So 1400 is equal to ut, तो ut कितना होगा? u 15 into 40 plus half a t square. We'll just solve this and get our result. 1400 minus 600 is equal to half a into 1600. तो ये कितना हो गया? 800 is equal to 800 a, और यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यूज हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. विदाउट दैट सॉल्विंग दिस वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि ये देखो, हमने यहाँ पे क्या निकाला एक स्टेटमेंट में, टाइम बाय विच दे विल मीट एट अ पॉइंट, है ना, दे विल क्रॉस. बट उसको सॉल्व करने के लिए विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट we could have solved that, but we would have to consider the distance or the point at which they meet. दो इक्वेशन बनाना पड़ता, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता. बी का इनिशियल वेलोसिटी 30 कैसे है? यहाँ तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. बी का 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना. बी का तो गिवन है वेलोसिटी. सी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट वंस अगेन. ये जो टाइम हमने निकाला, दिस इज द टाइम एट विच these both the objects A and C will meet. उसके लिए क्या किया हमने? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 10 प्लस 15, बिकॉज ए एंड सी बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो इससे हमें 40 सेकेंड्स मिला. अब इस 40 सेकेंड्स में ए कहाँ पहुंच गया होता? इस इनिशियल पॉइंट से 400 मीटर्स आगे यहाँ. और बी कहाँ है? 1000 मीटर्स पीछे, राइट. तो अब इस पॉइंट से बी को कितना एक्सीलरेट करना होता? वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन. तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बी का दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड. टाइम क्या है? जिस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे ए है, तो इस पॉइंट पे सी इसको क्रॉस कर रहा है. कितने टाइम में सी पहुंचा यहाँ पर? 40 सेकेंड्स. तो बी भी 40 सेकेंड्स में इसको एक्सीलरेट करके क्रॉस कर जाना चाहिए, राइट. So we just took the parameters, we just related them using s is equal to ut plus half at square, and we got the result. अब before coming to the next class, see we have a lot of questions. अगर ये clear नहीं हुए ना, so motion in a plane will be a big problem. So it's better go through all the problems, and let's meet in the next class with all your doubts for the modules 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. All right. Okay, all right. Okay, bye everyone.